Hello friends, myself Chetan Thakur. Today in standard 9th, subject science, English medium. So in science we have to complete it chapter number first, second, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So today start with chapter number 3, chemistry. Chapter name is atom and molecules. So in ancient Indian, Greek philosophers have always wondered about unknown and unseen from the matter. So in chapter number first and second, we have to complete learn definition of matter. What is matter? Characteristic of matter. So in ancient time, philosophers and scientists are interested to unseen or unknown term of all characteristic of matter. Is detail about 500 BC. It means back century. 500 back century. An Indian philosopher Cunard pursues that if we divided matters, we go on a division or a dividing of matter, we shall get a smaller and smaller particle. Ultimately, time will come, we shall come across smallest particle beyond the which further division will not possible. Hence is name particles Parmanu. Another Indian philosopher Katyama is said that these particles normally exist in a combined form which give a various form of matter. So first of all we have to definition. Indian philosopher Cunard say that we have to take a matter, particles of matter, for example any मैटर पार्टिकल्स. तो आप मैटर पार्टिकल होंगे उसको आपको कट करना है, कट करते रहना है और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये पार्टिकल को आप कट करना पॉसिबल नहीं होगा. यानी कि कट करना यानी कि पार्टिकल्स को डिवाइड करना, तो पार्टिकल्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसे जो अनकटिंग पार्टिकल्स है यानी कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ऐसे पार्टिकल को उसने कनड ने नेम दिया उस अपने नेम के हिसाब से परमाणु. अनोदर जो फिलोसोफर्स थे इंडियन, उन्होंने ये कहा कि पार्टिकल्स जो है मैटर के ऐसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक नया फॉर्म इन्वेंट करते हैं, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर. ऐसे जो पार्टिकल्स है नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं होते, और एग्जिस्ट नहीं होते तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे स्मॉल पार्टिकल है, ये कुछ स्मॉल पार्टिकल दोनों कंबाइन होके एक अनोदर मैटर क्रिएट करते हैं. अराउंड द सेम इनिशियल ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Leucippus suggested that we go and divide matter, a stage will come particle obtained cannot divide further. यानी कि जो कनट ने डेफिनेशन दी थी वैसी डेफिनेशन ग्रीक फिलोसोफर ने भी दी थी कि उस टाइम पे ऐसा कुछ कम्युनिकेशन था नहीं, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो दोनों का रिजल्ट सेम मिला. यहाँ पे कनड का, रूसी कनड का और ये ग्रीक फिलोसोफर का डेमोक्रस एंड लूसिपस का सेम मिला. All this was based on a philosophical consideration and not much could be done in 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized that a difference between become interested in finding how
एंड वाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन, यानी कि एलिमेंट जो है वो कंबाइन क्यों होते हैं और अगर कंबाइन होते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन उसका क्या। तो ऐसी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर मिले। एंटोनियर एल लुइजियर laid the foundation of chemical science by establish two important laws of chemical combination, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लॉज जो दिए वो एंटोनी एल लुइजर साइंटिस्ट केमिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज हम यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश आर मच। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट्स by Louiser and Joseph L. Proust एंड लुइसियर दोनों ने केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन किया। तो उनमें से जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो लॉज उसमें इंपॉर्टेंट दिया, उनमें से हमें फर्स्ट जो है वो लर्न करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो लॉज देखने हमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। So first of all we have to learn law of conservation of mass. So there is a change in mass when a chemical change. Chemical reaction take place. So learn by activity law of conservation of mass. So what is change in mass when chemically change? It means chemically reaction. So take वन फॉलोइंग सेट x एंड y। तो यहाँ पे x और y के आपको एक सेट लेने हैं, उनमें से कॉपर सल्फेट लेना है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट यानी कि Cu, सल्फेट यानी कि SO4, उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यानी कि Na2CO3 बिकॉज Na+1 CO3 -2 बैलेंसिंग Na2CO3। तो एक पेयर आपको ये लिया हमने बेरियम क्लोराइड Ba+2 Cl -1 BaCl2 सेकंड पेयर। अनदर पेयर सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी कि Na2SO4। उसी तरीके से लेड नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड ऐसे है। सो प्रिपेयर सेपरेटली बाय अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड x एंड y इन वाटर। आपको वाटर लेना है, उसमें 5% फर्स्ट पेयर लेनी है। जैसे कि आपने CuSO4 लिया तो उसके सामने 5% Na2CO3 लेना है। उसी तरीके से सेकंड BaCl2 लिया है तो यहाँ पे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट ये आपको लेने हैं। उसके बाद टेक अ लिटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ y इन कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क इस तरीके से वो मटेरियल होगा, ग्लास आता है, वाटर, सॉल्यूशन ऑफ y, क्रॉक, यहाँ पे आपने थ्रेड रखा है, और कॉनिकल फ्लास्क थ्रेड रखा है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखी है। ये जो है वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ऑफ y, और इन अ टेस्ट ट्यूब वी हैव टू टेक अ सॉल्यूशन ऑफ x।
solution of X. Deep in a conical flask contains solution of Y. So weight a flask with a content carefully. Now till us freely of flask, the solution X and Y get mixed. स्लाइटली आपको सॉल्यूशन X जो है वो टेस्ट ट्यूब में है, Y जो है वो फ्लास्क में है, दोनों को आपको मिक्स करना है. डू यू थिंक केमिकली रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा. लेट्स कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास ऑफ so does not mass contain chain. All notice all parts can be कंसिडर. तो यहाँ पे कंक्लूजन लिए मिलता है. दोनों सब्सटेंस है आपके पास. फर्स्ट है CuSO4 Na2CO3 सॉल्यूशन. दोनों को मिक्स किया आपने तो यहाँ पे रिएक्शन होगा दोनों के बीच में. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रहेगी. यहाँ पे आपका रिएक्टेंट पार्ट यानी कि जो रिएक्शन से पहले का होता है वो रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं. और आफ्टर प्रोडक्ट यानी कि दोनों को मिक्स करेंगे. रिएक्टेंट पार्ट में सॉल्यूशन X एंड Y यहाँ पे आ जाएगा. इनमें से कुछ बन के एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो बोलेंगे उसको प्रोडक्ट. तो हमने रिएक्टेंट साइड चेक किया मास एंड प्रोडक्ट साइड मास चेक किया. दोनों का जो मास था, मास विल बी इक्वल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. सो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों का जो मास होगा वो इक्वल रहेगा मास यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and such that compound held the same element in the same proportion, irrespective of where the compound come from or who prepare it. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिमेंबर रखना है कि मास कैन neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन में Lavoisier say that and other scientists many compound were composed of two or more element. कंपाउंड कैसे कंपोज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं H2 सेम एलिमेंट है, O2 सेम एटम है, H के दो एटम है, O के दो एटम है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, H2O क्रिएट करेंगे. ओनली O आप H लिखते हो तो ये एलिमेंट हो गया, ये एटम हो गया और ये मोलेक्यूल हो गया. एलिमेंट, एटम एंड मोलेक्यूल. तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम एलिमेंट कैन बी कंबाइन एंड क्रिएटेड एटम. सो एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं. तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि टू और मोर एलिमेंट एंड सच दैट कंपाउंड एंड द सेम एलिमेंट इन अ सेम प्रोपोर्शन. सेम एलिमेंट इन अ सेम प्रोपोर्शन. अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. इफ द कंपाउंड सच एज वाटर. सो वाटर लिया हमने. The ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. It means आप वाटर के जितने भी कंपाउंड क्रिएट करोगे उसका जो है मास का जो रेशियो है वो 1:8 रहेगा. 1:8 यानी कि हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है 2 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है. तो 2/16 यानी कि आंसर इज 1/8. तो सेम हो गया. उसी तरीके से यहाँ पे आप 3 लिखो.
फिर से कैंसिल आउट होके तो आंसर तो यही रहेगा, यानी कि मास का जो रेशियो है वो ऑलवेज 1:8 रहेगा। वट एवर सोर्स ऑफ वाटर, if 9 gram of water is decomposed of 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained, it means 1:8, तो यहाँ पे 8 है, तो हमने क्या लिया 10। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, यानी कि अब 9 ग्राम ऑफ वाटर को आप डिकम्पोज करोगे तो उसमें 1 पार्ट किसका रहेगा, हाइड्रोजन का, यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ oxygen can be obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in a ratio of, so यहाँ पे NH3, तो ये रेशियो हुआ उसका हाइड्रोजन का कितना हुआ, हाइड्रोजन 1 है बट यहाँ पे 3 है तो इसलिए 3 लिखा। N का आता है एटॉमिक मास 14, तो उसका ऑलवेज रेशियो नाइट्रोजन अगेन हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा, तो 14:3, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो 3:14। वट एवर मेथड वी कैन सोर्स फाइंड विच इज ऑप्टेन, यानी कहीं से भी आप ले लो, जैसे कि हमने 9 ग्राम वाटर कहीं से भी ले लिया तो उसका रेशियो जो था वो कैसा मिला, फिक्स रेशियो मिला, 1:8। उसी तरीके से एमोनिया आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो, उसका रेशियो मिलेगा 14:3, एमोनिया का हाइड्रोजन के साथ तो 14:3, हाइड्रोजन का एमोनिया के साथ तो 3:14। thus the law of constant proportion, which is known that the law of defined proportion, it means is a definite proportion, is also a law of proportion is also denoted by this method, it means constant proportion भी आप उसको बोल सकते हो। तो जो उसका लॉस था वो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है, the law stand by the Proust in a chemical substance, the element are always present in a chemical substance, chemical substance यानी कि कंपाउंड, उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, अकॉर्डिंग टू मास, क्योंकि हमने मास की बात की 1:8 वो मास का रेशियो है, तो इसलिए सब्सटेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। तो इतना हमने लर्न किया, 2 लॉज ऑफ chemical combination, law of constant proportion and law of conservation of mass. Thank you friends.